हेलो उपेंद्र। नमस्ते, हेलो, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सब लोगों को। गुड इवनिंग जितने भी लोग आए हैं आज टॉक में ज्वाइन करने के लिए। हम लोग बात करेंगे आज आर्ट डिजाइन एंड जो भी कन्वर्सेशन है उपेंद्र के साथ, जो हमारे आज के आर्टिस्ट है, सेरामिस्ट है, तो उनके बारे में सुनेंगे उनसे ही। और किस तरीके से आपने आपका टेक्निक्स डेवलप किए हैं और किस तरीके से आप काम करते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे सबके साथ। So actually I'm on mobile screen, so it's very small to read it out. Okay, can I help you out on that, please? Yes, please. Okay, so hello everyone. Welcome to this talk show. We are glad to welcome all of you, and we are having Upendra Ram with us today. So before going further, we want to just walk through what the talk about today. So we are Beats. We are Bhubaneswar Experimental Art and Design Studio, and based out of Bhubaneswar, we expect to create an elegant, ethically inspired, and environmentally friendly products. Our aims our aim is to create a premium lifestyle product by harnessing the creative spirit of Odisha. Its crafts in a socially and environmentally responsible manner. Our goals are to conduct ourselves as a socially and environmentally conscious organization, to design and build high-end products that are visibly appealing, technically innovative, and user-friendly, to drive research and development in new design practices and ethnic Odia art. These are few shots from our studio and our products. This is Gomo, Valeri, and Wacom. Please feel free to visit our website www.studiobeat.com. We'll love to have you there. So, just want to talk a little further about Odisha craft practices. It's bewitching, varied, and intricate, thought-provoking, yet utilitarian. These are the words that run through your mind when we talk about the varieties of art and craft in Odisha. Stonework, silver filigree, woodcraft, applique work, brass and metal work, doka casting, hornwork, potter paintings, paper mache, terracotta, the list goes on. Every district in Odisha has a specialist art practice and different take on one another. Over hundreds such practices were documented in the early 90s by the renowned artist and art historian Dinanath Pati, Dr. Dinanath Pati. The list started dwindling in the recent years with artisans struggling to find work. At Beats, we aim to rejuvenate this incredible art heritage by reimagining the way it connects with the contemporary world by way of design thinking and experimental art. Today's conversation is the part of art, design, and conversation, the first episode behind the wheels with artist ceramist Upendra Ram in conversation with Julius Das, presented by Beats on alternative ways of understanding the uses of ceramic in our everyday life. This talk series is focused on understanding the process, inspiration of ingenious craft, and the impact of craft objects on our day-to-day life and environment, especially in the context of modern day design thinking and the ever-growing importance of sustainability. We will engage with practitioners from various fields of art and design to understand the environmental and societal impact of mass-produced products, the significance and relevance of ingenious products, and the role of popular mediums like ceramic, clay-based practices in changing the way we view the crafts today. At Beats, we encourage the understanding of myriad influences on the fostering of innovation in Odisha craft and practices and the associated development of critical skill design in local craftsmen. We believe this talk series will play a pivotal role in our mission to place
art and design at the center of any discussion of a promising and alternative future. Before going further, let's introduce our today's guest, Shri Upendra Ram, and he belongs to Shrivan, Bihar, and is a ceramist based out of Nagpur. He graduated with an MFA in Pottery and Ceramics from Banaras Hindu University. In 2013, he practices ceramic as a conceptual medium using narratives that form burn on human existence. He is the resident ceramist of Studio Pottery, Nagpur currently. Welcome, Upendra Ramji. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. It's a pleasure to have you. We'll just walk through a little more about your art practices, sir. Across eastern Uttar Pradesh and Purvanchal region, on the gates of village of long-limbed horses and elephants greet travelers, installed in devotion of Rajavellas, Goria Baba, Shukra Baba, and Veer Chundimal. These are indigenous gods who are village deities, and they are called Grama Devtas and are made of clay mold, which may look abstract but concrete in their intent of vanquishing inequality, discrimination, and absent sadness. At times, they are terracotta and in some villages unfired clay. Upendra Ram's sophisticated, beautiful renderings in ceramic gives a nod to the traditions of communities using beautiful manifestation as the form of discrete. Ceramic has always been an elite arena where what differentiates an ceramic object than the fired clay utensils from a potter's wheel? In part of northern India, taboos disallow the reuse of terracotta chai cup as a marker of community, the caste untouchability. These are few of the works of Upendra Ramji. Now, the man of today's art, the moderator, Julius Das, is an artist based and works on Bhubaneswar, Odisha. Julius has also done his BFA in 2013-17 from BK College of Art and Craft, Bhubaneswar, Odisha, and NFA from the Department of Art and Performing Arts in the the School of Humanities and Social Science from Shiv Nadar University, Dadri. Julius works with many diverse subjects like post-war, citizenship, historical events, monuments, visual mass culture, sexuality, multi-layer conceptual, critical frameworks, and research-based projects. He is currently working as a product designer for the Beat Studio. Julius, is all over to you now. Thank you, Pragya, for presenting this wonderful presentation with us. So, before starting with Upendra, so I want him to speak about how their practices got influence and उनके किस तरीके से वो सेरामिक पे आए. तो पहला मैं ये उनको सवाल पूछना चाहता हूँ ताकि वो हमें बताए कि वो पहले कैसे एज अ सेरामिस्ट उनके जर्नी स्टार्ट किए फ्रॉम वेयर. जैसे कि हम लोग अभी सुने कि आपने कैसे मंदिर पे जो डेटीज होते हैं उनको देख के या फिर उस तरीके से जो आपके सराउंडिंग में जिस तरीके से आपके प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस किए हैं कंटिन्यूअसली, तो उसके बारे में बताए. तो कैसे हुआ आपका जर्नी स्टार्ट एज अ सेरामिस्ट? जी बिल्कुल, ये बताना चाहेंगे. ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है कि मैं कैसे सेरामिक में आया. और मैं बताना चाहूँगा, जब मैं छोटा था तो मिट्टी से खेलता था. तो जब मिट्टी से खेलते थे तो मम्मी बहुत मारती थी मेरे को. बोलती थी कि ये जुकाम हो जाता. फिर ये सब गुड्डे गुड्डी के खेल तो एक लड़कियां खेलती है, लड़के कहाँ खेलते. तो ये मेरे को कह के मेरे को मिट्टी से कुछ करने नहीं दिया जाता. तभी हमारे चाचा पटना में वो पढ़ाई करते थे. जब ये पटना से आए घर तो उन्होंने शायद कलाकार का सामान देखा था, तो
तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये अच्छा कर रहा है, इसे करने दो। फिर भी ऐसे पढ़ाई लिखाई होते गई, स्कूलिंग खत्म हुई, पता नहीं था कि फाइन आर्ट्स भी होता है। फिर मेरा पढ़ाई, आगे की पढ़ाई में बनारस चला आया, जहाँ पे हमारे चाचा, अ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक स्कूल है CHS, वहाँ पे वो टीचर। वहीं पे मैं फिर BHU में मेरे एडमिशन मिला, और वहाँ पे मैं प्राइमरी लेवल से पॉटरी का सभी टेक्निक सीखा, जैसे कॉयल पॉटरी, फील्ड टेक्निक पॉटरी, स्लैब पॉटरी। ये सभी बनाने के बाद मैंने पॉटरी बनाने के बाद मैंने बेकिंग और ग्लेजिंग भी सीखा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तब से अभी तक मेरी कंटिन्यू काम चल रही है। तो आप सेरामिक में कौन सी टेक्निक है जो आप उसको काम कर रहे हैं, या जैसे स्टार्टिंग से आप जितने भी मटेरियल एक्सप्लोर किए हैं, तो वो एक्सप्लोरेशन का जैसे कि आप एक पॉइंट पे पहुंचे होंगे कि आपने कोई स्पेसिफिक टेक्निक को सेरामिक के साथ आप इंट्रोड्यूस किया, या फिर आप कंटिन्यूअसली उस प्रोसेस को आगे लेते रहे हैं अपने प्रैक्टिस में, जी, उसके बारे में मेरा बताइए। मेरा एक टेक्निक है जो जी मैं ज्यादातर व्हील टेक्निक पे ही काम करता हूँ। व्हील टेक्निक में मैंने थ्रोइंग प्रोसेस से काम करता हूँ। जी थ्रोइंग प्रोसेस में मैं बड़े बड़े स्कल्पचर का फॉर्म बनाता हूँ, और जी उसके ऊपर एक इनगोब होता है। मैं जी बताना चाहूंगा इनगोब क्या होता है। ये जी इनगोब एक प्रकार का कलर स्लिप होता है, जो जी ये दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक रेड क्ले से बनाए जाते हैं और एक व्हाइट क्ले से। जो मैं अपने वर्क पे यूज करता हूँ वो रेड क्ले से बनाई हुई इनगोब होते हैं। जी जो अ, जो हम इन अपने कलाकृति पे पहले इनगोब का पूरा एक कोट लगा देते हैं। जी फिर उसको अपने टूल के, एक शार्प टूल होते हैं नीडल के जैसा, फिर उसके मैं ड्रॉ करने के बाद उसके बैकग्राउंड को इनग्रेव कर देता हूँ, जिसे मैं ग्रेफिटो टेक्निक बोलता हूँ। जी ये मेरी वर्क की। मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो जी अभी आप लोग देखें, ये पहले मैं अ, ये ग्रीन वेयर में ही मैं इसको पॉट के ऊपर इनगोब लगाता, फिर बैकग्राउंड को इनग्रेव कर देता। जी ये बिस्किटेड होने पे ऐसा नहीं होता है, ग्रीन जब रहता है वेयर तभी ये करते तो ये प्रोसेस आप कितने टाइम से कर रहे हैं, जैसे कि बैचलर में हो गया या हैं। फिर ये आप प्रोसेस उसके मैं बैचलर डिग्री के लास्ट ईयर में 4th ईयर में था, जी तब मैंने एक डिनर सेट बनाया था। जी तो वो डिनर सेट मेरा मतलब फ्लावर्स रहते थे। फिर मैंने वैसे वहां से, हाँ जी, फ्लावर्स होते थे, मतलब कुछ वेलरी होते थे, लता जी वाले ही पौधे होते थे पॉट के ऊपर। फिर वहीं से मेरा आगे चल के अभी उसमें पेंटिंग जैसा ड्राइंग, रियलिस्टिक ड्राइंग आ गया। जी तो आपका जैसे कि फ्लावर हो गया, अलग अलग चीजें आप जब अपने काम के ऊपर लाते हो, तो इसका इन्फ्लुएंस कहाँ से आया है आपका? जैसे आप बताए कि मतलब जो डेटीज होते हैं या फिर आप जैसे खेलते थे, तो उसका रिफ्लेक्शन अभी आपके काम के ऊपर दिखता है, तो वो किस तरीके से आप उसको परसीव किए हैं काम पे? जब ये कभी कभी मतलब ग्राम्य देवता होते हैं, क्योंकि जो चीज हमने बचपन से देखा है जी उसको हम कभी भुला नहीं सकते, जी वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। तो वही चीजें मैंने जैसे ग्राम्य देवता को पूजा करते हुए देखा था, बलि प्रथा देखा है। जी उसके बाद बचपन में मैंने तालाब में खेला है, पतंग उड़ाया है। तो ये सभी चीजें मेरे पॉट के ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है, अपने आप में ही है। तो जी ये सभी चीज मेरे को इजी लगता है, क्योंकि अपने लाइफ से रिलेटेड है। इससे अच्छा मैं सोचता हूँ कि दूसरा क्या होता है। तो आपकी प्रैक्टिस में, जैसे कि आप बनारस में भी पढ़े हैं और फिर आपने शांति निकेतन से भी मास्टर्स किए हैं, तो ये सब जगह जो हाईली इन्फ्लुएंस है उनके क्राफ्ट के लिए, और वो उस जगह पे बहुत सारे क्राफ्ट है, जैसे कि बोलपुर है, वहाँ पे टेराकोटा का इन्फ्लुएंस है, और फिर बनारस में हम लोग अलग अलग टेराकोटा देखते हैं, या फिर
यूपी में अलग अलग जगहों पे, जैसे खुर्जा हो गया और फिर सारधना हो गया या फिर आजमगढ़ हो गया जो ब्लैक पॉटरी के लिए भी फेमस है। तो ये जी जो सारे क्राफ्ट है हमारे अराउंड, या फिर आप जिस जिस जगह पे अपने जर्नी स्टार्ट किए हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन आपके काम के ऊपर आया है क्या, या फिर किस बिल्कुल। तरीके से? जी। जब मैंने बनारस में पढ़ाई किया था तो मैं बनारस के ही वो बेस है हमारा, जो थ्रोइंग इतने बड़े बड़े मैं थ्रोइंग में व्हील पे कर कर पाता हूँ। जी। उसके बाद मेरी मास्टर डिग्री भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही हुई है। मैंने शांति निकेतन गया है, मेरे फ्रेंड थे उनके पास गए थे, तो वहाँ के मैं बहुत सारी चीजें देखा है। फिर मैं अपने बनारस में जो लोकल पॉटर्स हैं, जैसे आप बताए निजामाबाद, जी। ये सभी चीजें देखे हैं। वहाँ का शेप है जो एक स्कल्पचर शेप में मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ, जो हमारे शेप देखे होंगे टोरसो की तरह दिखते हैं। तो वही सभी चीजें हैं जो ऐसा लगता है कि हम अपनी ट्रेडिशन से हटके नहीं है, जी। और अपने ट्रेडिशन को समझे बिना हम मतलब कंटेम्प्रेरी आर्ट बना ही नहीं सकते। मैं ऐसा महसूस किया। जैसे कि अभी स्लाइड शो में आपका जो काम था, जैसे पुराने हम लोग देखते हैं मतलब गांव में जो ऐसे टोटम पोल्स होते हैं, जैसे या फिर बहुत सारे कल्चर में हम लोग देखते हैं कि एक मतलब आपका जो सेरामिक काम है, बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे खंबे जैसा है, तो उसका शेप हो गया, मतलब आप समझ रहे हो, जैसे कि आप जी जी कंटिन्यूअसली वो ट्रेडिशन के बारे में बोल रहे जी। हैं, तो उसका सेव से भी लग रहा है कि ये इन्फ्लुएंसेस उस तरीके से आया है जैसे हम लोग देखते हैं, या फिर जैसे कि कोई पेड़ के पास जो पत्थर रख के पूजा करते हैं, तो उसका शेप बहुत ही रॉ होता है, मतलब हम लोग समझ जाते हैं, मतलब उसमें कुछ इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, इसे बहुत सिंपल होता है, जो कि आपके काम में है, जैसे उसको कार्व करना, उसके ऊपर जैसे कोई स्टैचू पे हम लोग सिंदूर लगाते हैं या फिर हल्दी लगाते हैं, एंड देन आप देखे होंगे भी गांव में से आंख भी लगाते हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस तो आपके काम के ऊपर है ही, जो मुझे लगता है कि उसी से आपका जो इन्फ्लुएंस है, आप इन्फ्लुएंस हुए हैं उस सारी चीजों को लेके, वो रिफ्लेक्ट होता है। तो इसके थ्रू अगर जैसे हम लोग ये कन्वर्सेशन में क्राफ्ट को लाए, जैसे हम बताए, आप भी बताए कि किस तरीके से आप अलग अलग जगहों का पोट्री हो गया, थ्रोइंग प्रोसेस हो गया, उसको आपने ऑब्जर्व किए हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन पे जब आप अपने काम के साथ देखते हो, तो उसको आप किस तरीके से डेवलप करते हो? जैसे कि कोई एक आइडिया हो आपका, तो जैसे कि हम लोग अलग अलग आइडिया को अलग अलग मीडियम के साथ ले सकते हैं, ये कुछ आइडियाज है, हम लोग वेरी स्पेसिफिक मीडियम के साथ उसको डेवलप करते हैं। जब बात आती है सेरामिक या फिर कोई क्ले बेस्ड प्रैक्टिस, तो उसको आप कैसे अपने आइडिया को सेव करते हो, मतलब आप अपने आइडिया या फिर थॉट को कैसे काम पे लाते हो, काम करते हो, उस तरीके का अगर मैं पूछना चाहूंगा आपको। मेरी कलाकृति सिचुएशन के अनुसार, मेरे जो फॉर्म है वो सिचुएशन के जी। अनुसार चेंज होते रहते हैं। जी। मीन्स अभी मैं जो नए काम कर रहा हूँ तो वो एक बिल्डिंग का फॉर्म है, क्योंकि मैंने बॉम्बे और दिल्ली ये सभी जगह एग्जीबिशन के पर्पज से जाते रहते हैं, तो मैंने देखा कि जी। ऊंचे ऊंचे जो बिल्डिंग्स है, जी। तो उससे थोड़ा सा लगा कि ये तो मेरा ही फॉर्म है। मतलब जी। फिर मैं उसमें अभी एक बिल्डिंग का फॉर्म तैयार करते हैं, और जी। उसके ऊपर जो भी ड्राइंग्स हैं, तो वो ड्राइंग्स अभी मेरा चल रहे हैं। जैसे वो पेरेंट्स है, जो एक पेरेंट्स है वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में लगे हैं, जी। और गांव के बच्चे, जैसे हम लोग की पढ़ाई लिखाई गांव से हुई, फिर भी हम लोग इतने कम संसाधन में हम लोग स्कूल गए। जी। पेरेंट्स वो काम में लगे हैं, बच्चे अपने स्कूल जा रहे हैं, अपने डेली लाइफ में लगे हैं। जी। तो इस सभी चीजों से अभी वो मेरा चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक। जब मैं कहीं जाता हूँ तो फिर लगता है कि ये भी एक सब्जेक्ट है, जी। तो वहां से मेरे को आइडियाज आ जाते तो आप अपने जिस जगह पे जाते हो उस तरीके का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आता है, मतलब जैसे आ कि वहां जाते पे हैं। जी लोकेलिटी जी कैसा है, या फिर मतलब आप जी चीजों को ऑब्जर्व करते हो,
और उसी ऑब्जर्व को करते हैं, क्योंकि ऑब्जर्व जी कर वो मतलब एक शायद वो आर्टिस्ट का नेचर है उस इसलिए जी मतलब अपने आप वो चीजें आ जाती है। मैं कहीं से जी न लेआउट बनाता हूँ न कहीं ड्रॉ करता हूँ, जी मैं जो भी काम करता हूँ ऑन द स्पॉट हो जाते हैं, जी और एकदम मतलब रियल कनेक्ट हो जाते हैं हमारे लाइफ से। लगता है कि सच में मैं ये कहानी पहले से गढ़ के रखा। जी। तो ये चीज बहुत इजी लगते हैं मेरे लिए, लगता है कि इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, जहां जी जाते हैं वहीं पे सब्जेक्ट है, वहीं जी से मैं उठा के लेके चला। और जब भी बनाते हैं वो ड्राइंग हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आ जाते हैं। अब मैंने वहां पे कंस्ट्रक्शन देखा, पेरेंट्स कंस्ट्रक्शन में लगे हैं, बच्चे जी स्कूलिंग बच्चे वो जो मेरे मैंने जो ड्राइंग करते हैं पुराने, जब जब मैं छोटा था वो वाली ड्राइंग आ जाती है। जी जैसे हम झोला टांग के स्कूल जाते थे, जी। तो वो सभी चीज को लेकर अभी चल रहे हैं मेरे, वो मतलब चेंज होते रहते मोस्टली आपने भी बोले हैं कि मतलब कैसे सराउंडिंग मेमोरी और जिस तरीके से आप ऑब्जर्व करते हैं वो सारी चीजें आपके काम पे रिफ्लेक्ट होता है। हैं। बिल्कुल वो टेक्निक हो या फिर वो शेप हो, ये सारी चीजें आपको हाईली इन्फ्लुएंस करते हैं जी सराउंडिंग के हिसाब से। जी और एक चीज है कि मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जो क्राफ्ट प्रैक्टिसेस है हमारे देश में हो गया, या फिर जिस पार्ट में आप रहते हैं हो गया, या फिर जिस पार्ट से आप धीरे धीरे अपने जर्नी स्टार्ट करके अभी तक पहुंचे हैं, तो ये जो क्राफ्ट है अलग अलग जगहों के क्राफ्ट हो गया, तो वो कैसे आपको इन्फ्लुएंस किया है? जैसे आपने अभी हाँ थ्रोइंग के प्रोसेस बता रहे थे, तो उस बिल्कुल। तरीके का कोई और क्राफ्ट हो जिसका कोई मीडियम अलग हो, जैसे कि ब्रास का क्राफ्ट हो गया, या फिर बहुत सारे क्राफ्ट होते हैं, लेदर के क्राफ्ट हो गए, तो ये जो जी अलग अलग क्राफ्ट प्रैक्टिसेस है, तो वो किस तरीके से आपके काम को शेप किया है, या फिर आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है अभी के टाइम पे क्राफ्ट को लेके? मीन्स ऐसा लगता है कि वो क्राफ्ट हम ना देखे, जी वो क्राफ्ट ना देखे तो हम अपने को मतलब समझ ही नहीं पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। और जी वहीं उसी क्राफ्ट से हमारे आर्ट में डेवलपमेंट होते हैं। जब तक हम क्राफ्ट को ना समझे तब तक हम रियल आर्ट नहीं बना सकते। जी तो ये सभी जगह की अलग अलग आर्ट हैं, अलग अलग जैसे कल्चर है वैसे वैसे आर्ट जी है, अलग अलग सोच है। बस वही है कि मतलब उनकी थोड़ी सी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग हो जाते होंगे, हो जी जाते हैं अक्सर। और मीडियम के अनुसार वो डिजाइन भी चेंज हो जाते हैं, जैसे क्राफ्ट जी हुआ, जैसे लेदर हुआ, जी बेम्बो आर्ट हुए। जी तो ये सभी चीजें वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार, वहाँ की मीडियम जी के अनुसार चेंज हो जाते हैं उसके डिजाइन। जी तो ये मतलब ये डिजाइन का सेंस तो वहाँ पे बहुत अच्छा से डेवलप्ड होते हैं जी क्राफ्ट में। और वो डिजाइन से सेंस यदि हम क्राफ्ट में नहीं समझे तो जी उसके बिना आर्ट हमारे अधूरा है। जी तो मैं ज्यादा चाहता हूँ कि मैं कहीं भी जाऊं तो पहले वहाँ की ट्राइबल आर्ट हो, या हम ट्राइबल आर्ट को हम एक मतलब एक आर्टिस्ट ही मानते हैं, जी क्योंकि उनके हमको हम वो नहीं कहते हैं कि वो फोक आर्टिस्ट हैं चाहिए, जी मुझे उनमें एकदम नयापन ही दिखता है। जी तो वो सभी चीजें से बहुत हमको हेल्प मिलती है, सभी को मिलती होंगे शायद, जी क्योंकि जी ये जो भी करते हैं उनके ना कहीं से चीजों लाइव मतलब जो भी होती हैं वो अपना होती है, कहीं जी से चुरा के लाई हुई नहीं होती है, वो अपना एक जी। स्किल होता है। तो सभी चीजें बहुत जरूरी है सभी को देखना समझना, हर जगह की अपनी क्राफ्ट वर्क। और जैसे कि क्राफ्ट का भी ऐसे जर्नी रहा है ना, कि हम लोग अभी उसको बहुत सारे लेयर पे समझते हैं, बट एक्चुअली जब क्राफ्ट डेवलप हुआ था वो बहुत यूज बेसिस पे मतलब आया था कि लोगों को जरूरत है तो वो चीजें बनाते हैं, तो इस तरीके से फिर उनका कैटेगराइजेशन कर दिया गया कि। बिल्कुल और जैसे आप बताए कि क्लाइमेट के हिसाब से और फिर एक जगह के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। आज के टाइम पे जैसे हम लोग देखेंगे जैसे आप बताए कि आप
डिनर सेट भी बनाते हैं जो यूज करने के लिए यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट हो गया, ग्लास हो गया, या फिर प्लेट्स हो गया। तो ये सारे चीजें पहले भी बनते थे, लेकिन अभी के जैसे कि हम बोलेंगे कि मार्केट हो या फिर लोगों के अलग क्या बोलते हैं चॉइसेस हो, उस हिसाब से हम लोग वो उस चीजों को ज्यादा एम्फासिस करते हैं। स्पेशली सेरामिक में अभी धीरे धीरे वो इमर्जिंग टाइम आ रहा है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे डिनर सेट हो गया या फिर ये सारी चीजें जो मीडियम स्पेसिफिक नहीं है बट यूज के हिसाब से लोगों के पास पहुंच रहा है। लोग वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे पहले हम लोग ब्रास के थाली में खाते थे या स्टील में खाते थे, अभी एक लोगों में वो सारी चीजों को लेके थोड़ा सा मतलब Awareness स्टेप है। ले रहे हैं, अवेयरनेस हो रहा जी है कि लोग अभी जी सेरामिक को डिनर सेट पे एक्सेप्ट करें। तो उस ये जो सारे चैलेंजेस है, तो आप एज अ सेरामिस्ट, एज एन आर्टिस्ट और एज एन थिंकर वो सारे चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करते हैं इन अ फील्ड कि आप एक आर्टिस्ट भी हो, आप ये सारी चीजें भी संभालते हो, तो वो सारे चीजों को आप किस तरीके से बैलेंस करते हो? अपना प्रैक्टिस हो गया और उसके साथ साथ मार्केट और लोगों के टेस्ट और चॉइसेस के साथ आप कैसे डील करते हो? आप कैसे समझते हो लोगों के थॉट्स को? क्या है कि जब आप एक आर्टिस्ट है ना, जी तो वो ऑलरेडी आपको लगेगी कि ये लोगों की जरूरत जी है ना। ये और जो हम लोग बनाते हैं जो टेबल वेयर, जो सेरामिक में स्टूडियो पॉटरी को टेबल वेयर जी ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। सेरामिक मीन्स लोगों को आज भी दिमाग में है कि टेबल वेयर, कप प्लेट बाउल ऐसा ही जी होते हैं। लेकिन वो हमारे हमारे सोशल समाज में इतना जी कम लोग हैं बनाने वाले, जी और इतना ज्यादा लोग हैं यूज करने वाले, जी कि बनाने वाले की चीजें ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बनाने वाले बहुत कम। बात कम है। हम लोग यही सोच लेते हैं कि मतलब ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आजकल के जमाने में जो प्लास्टिक, फोम और फाइबर के जो कप्स, ग्लासेस या आर्ट्स मटेरियल आ गए, तो लगता है कि वही बहुत सस्ती और टिकाऊ है। ऐसा नहीं है। हमारे समाज में 0.1% लोग ऐसे हैं ना कि इतना अवेयर हैं कि उस चीजों को यूज नहीं करते। जी उनको जरूरत होती है फिर भी नहीं लेते। जी लेकिन इतना कमी है हमारे यहाँ आर्ट की कि उनको मिल नहीं पाती, जी करने वाले बहुत कम है। तो ये सोच के नहीं परेशान होना है कि हमें मतलब हमारे यहाँ ये मतलब हम डिफिकल्टी नहीं फेस कर रहे हैं कि हमारी चीजों की मांग नहीं है। मांग बहुत है, जी लेकिन हम कर नहीं पाते। जी हम लोग को ये करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये यदि एक हम जो भी स्टूडियो पॉटरी बनाए, जो भी हम बनाते हैं हैंडमेड बनाते हैं, है ना, जी तो हमें टाइम भी लगते हैं, हमारे मटेरियल कॉस्ट भी अलग होते हैं। जी समय के अनुसार सभी चीजें थोड़ा सा ये सभी ऐड करते हैं, तो हमारे क्रॉकरी थोड़े महंगे हो जाते हैं। जी ठीक है, लेकिन लेने के लिए लोग चाहते हैं। महंगे हैं तो क्या, क्योंकि उनको अपने हेल्थ के प्रति सतर्कता है जी कि हम प्लास्टिक और फाइबर में नहीं खाएंगे। जी तो वे सतर्कता है, लेकिन उनको बहुत नहीं मिल पाती, जी क्योंकि बनाने वाले बहुत कम है। लोग तो यही सोच लेते हैं कि ये बिकता नहीं है, हम नहीं बनाएंगे, लेकिन जिनको चाहिए उनको तो मिल नहीं पाती। जी तो मैं तो कभी डिफिकल्टी फेस नहीं करता, क्योंकि जी लगता है कि हमारा आर्ट न बिके और हमारी क्रॉकरी न बिके। मैं जितना भी बनाता हूँ तो लोगों तक पहुंच जाते हैं, और वैसे ही मेंटालिटी के लोग ही मिलते हैं मेरे से कि उनको जी लगता है कि वे समझाते हैं कि ये हाइजेनिक है, ये ग्लेज हाइजेनिक है, ये वेयर हाइजेनिक है, ये सेफ ही आर्ट फॉर्म है। तो कुछ लोग तो पॉटरी को वास्तुशास्त्र के अनुसार ही समझते हैं। तो ऐसे भी लोग न यूज करके लोग घर में रखने के लिए भी
पॉटरी यूज खरीदते हैं। करते हैं। जी अभी जैसे हमारे सेरामिक का जो मिट्टी है, स्टोन वेयर बॉडी, टेराकोटा वेयर बॉडी, तो जी आप पता है कि हम लोग टेराकोटा वेयर बॉडी को अपने यहाँ जो नॉन पोरस है तो एक बार ही यूज करके फिर उसको फेंकने की परंपरा है, क्योंकि वो एक बार यूज करने के बाद वो पानी और कोई भी चीजों का ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व कर लेता है। तो उसको बोलते हैं कि ये जूठा हो गया, हम यूज नहीं करें, है ना। जी तो ऐसी बात है। लेकिन जो भी ट्रेडिशन है चाहे धार्मिक चीजों के, लेकिन वही टेराकोटा को ही लोग पसंद करते हैं, वही यूज करते हैं। ठीक वैसे ही हमारे जो स्टोन वेयर है, जी स्टूडियो पॉटरी का स्टोन वेयर, तो अब देखिए जो हमारे यहाँ के जो धार्मिक लोग हैं, चाहे बुद्धिज्म हो गए, चाहे जैनिज हो गए, चाहे ब्राह्मण हो गए, ये सभी लोग स्टोन वेयर पॉटरी यूज करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जैसे पहले से कॉन्सेप्ट दिमाग में है कि बोन चाइना मीन्स हड्डी का चूरा उसमें है, तो हम यूज नहीं करेंगे उस पॉटरी, हम क्या यूज करेंगे, स्टूडियो पॉटरी को। जी तो उनको स्टूडियो पॉटरी एक तो सब बहुत इजी मिलती नहीं और थोड़ी सी महंगी भी है, और वे चाहते हैं तो उतना अधिक मात्रा में मिल नहीं पाती। तो ये है चीजें कि हमारे लोगों तक पहुंचाने में बहुत हम लोग कम सक्षम है, बना के पहुंचाने में डिमांड है लेकिन हम लोग पहुंचा नहीं पाते, ऐसा मुझे लगता है। और एक भी चीज है, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे मार्केट में बहुत कम दाम में भी चीजें मिल जाती है, जैसे कप हो गया या फिर जो भी घर पे यूज करने वाले, तो उसका प्राइस भी कम होता है और लोगों को लगता है कि इसको यूज करने से मतलब इसको यूज ही कर लेते हैं, स्टूडियो पॉटरी तो बहुत महंगा होता है। बहुत तो महंगा। बट फिर वो जो जैसे कि जो लोग जानते हैं इस चीजों के बारे में अवेयर है कि किस तरीके से उसका फायरिंग से लेके और जो भी मीडियम यूज करते हैं वो कितना हार्मफुल होता है, हम लोग जब ऐसे खरीद, तो उस तरीके का भी एक अवेयरनेस मतलब स्टूडियो पोट्री के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि ये सिर्फ यूज करने के लिए नहीं है, या फिर उसका हेल्थ बेनिफिट्स है, किस तरीके का ये मटेरियल से बना है। तो कोई भी जैसे कि लेड फ्री फायरिंग हो गया या फिर लेड फ्री ग्लेज हो गया, तो वो सारे चीजों का भी आप मतलब लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये जी जो अपना ग्लेज है, कुछ जी ग्लेज ऐसे भी हैं कि फूडेड ग्लेज हैं, जी कुछ ग्लेज पे फूड ग्रेड हम नहीं लोग है। हाँ नहीं है तो उसको यूज जी नहीं करते, और जी जिसको पता है कि ये हमारे जी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो वो तो जी वही लेंगे ना। जी तो ये सभी बात है। मतलब बहुत हमारे समाज में बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, बहुत अपने जी हेल्थ के प्रति अवेयर है, अपने जी क्लाइमेट के प्रति अवेयरनेस है, जो ये सभी चीजों के लेकर सतर्कता है और ये चीजों को वे चाहते हैं लेना, खरीदना। तो आपका जो टेक्निक है, जैसे एनगव को लेके आप जिस तरीके से काम करते हैं, तो एनगव का कुछ इस तरीके का एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस है आपके अंदर कि आप इसको किस तरीके से एनवायरमेंटल फ्रेंडली हिसाब से यूज कर सकते हो, या फिर आपका जो टेक्निक है किस तरीके से एनवायरमेंट के ऊपर प्रभाव डालता है, इसमें कुछ या कोई तरीका है जिसके वजह से आप कम एनवायरमेंटल हार्म चीजें प्रोड्यूस कर सकते हो, इसका कुछ टेक्निक आपने कर रहे ये हैं आपके काम पे? ये ये जो हमारे इनगोब है, ये जी तो मतलब ये फूड के लिए भी अच्छे हैं और स्कल्पचर के डेकोरेटिव आइटम्स के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि ये रेड जी क्ले से बनाई हुई होती जी है। रेड क्ले उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जी वो वो जब वो बर्न होते हैं तो वो कलर छोड़ते हैं, जैसे ब्राउन कलर देते हैं, जी ब्राउन के सभी शेडो कलर देते हैं, ब्लैक कलर भी देते हैं, तो जी वो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छे हैं। उनको जी यदि छोड़ देंगे तो ये जमीन में डिस्ट्रॉय होके मर्ज भी हो जाते हैं, और ऐसे अपने जो भी चीज मटेरियल हम यूज करते हैं खाने पीने में उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें तो वो आयरन का ही है, एक आयरन का ही मात्रा उसमें ज्यादा है। जी। तो जो जैसे कि फिर
तो ये जो पूरा मीडियम है, पोट्री हो गया या सेरामिक हो गया, जितने भी क्ले बेस है, तो ये बहुत जैसे कि जो मास प्रोड्यूस नहीं करे, मतलब स्टूडियो पॉटरी इंडस्ट्री बहुत छोटा है। मतलब उसको बहुत एफर्ट लगते हैं और फिर मार्केट तक पहुंचाने में, लोगों को अवेयर करने में बहुत समय लगता है। तो उस ये जो चैलेंजेस है, आप किस तरीके से उसको फेस कर रहे हैं अपने अभी के प्रैक्टिस में? जैसे कि एक मतलब आप एक साथ मास प्रोड्यूस तो कर पाएंगे, बट वो मास प्रोडक्शन का बहुत अलग अलग इफेक्ट्स है लोगों के ऊपर, या मार्केट को लेके कॉन्शियस है। तो आप वो सारे चैलेंजेस को कैसे फेस करें अभी के टाइम पे स्टूडियो अभी पोट्री मुझे, पे? हाँ, स्टूडियो पोट्री में मैं मतलब बल्क में करेंगे तो बहुत इजी है। जी हाँ, अब मतलब छोटे छोटे पार्ट में कर रहे हैं, जैसे किसी को घर के डिनर चाहिए, किसी को ऑफिस, किसी के कार्यालय के लिए, पार्टी के लिए टेबल वेयर चाहिए। जी सबके लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जी लार्ज स्केल में हमारे वर्क नहीं होते हैं कि वैसे एक गाड़ी में डंप करके भेज पाए। जी तो इसलिए तब मुझे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत आती है। और यही चीज यदि हम मास प्रोडक्शन करें ना, जी बल्क प्रोडक्शन, तो हमें बहुत इजी होगी। जी तो ये तो अच्छी बात है कि आप इसको इंडस्ट्री के रूप दें, तो आप जी अच्छा कर सकते हैं। जी। जी और एक चीज है, जैसे कि बहुत सारे सेरामिक आर्टिस्ट है हमारे देश में, हो गया, या फिर हम लोग बहुत लोगों से इंस्पायर हुए हैं, जैसे ज्योत्सना भट्ट हो गए, हिम्मत शाह हो गए। तो ऐसे कोई मतलब आर्टिस्ट है जिसने आपको इन्फ्लुएंस किए हैं या फिर आपको हेल्प किए हैं, या कोई आपके मेंटर बने हैं, जो आपके काम पे वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होता है? या आप उसके बारे में कुछ अगर बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आप एक मीडियम के साथ बहुत कंफर्टेबल हुए और उसको एक्सप्लोर करने की सोचे? अ, मतलब हम जो किसी के टेक्निक से, हम शेप से बात करें ना, तो जी थ्रोइंग प्रोसेस में जो हमारे एक अपने इंडिया के आर्टिस्ट हैं, जी नेशनल अवार्डेड आर्टिस्ट केसरी नंदन, जी जो उनके उनके थ्रोइंग से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। जी बाकी मेरी ड्राइंग में और फॉर्म में किसी से इंस्पायर्ड नहीं, उनके हम्म, थ्रोइंग से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। केसरी नंदन, कैसे? ये अच्छा। जयपुर के आर्टिस्ट हैं, जयपुर में जी काम करते हैं। जी। और जैसे अभी आप रेसिडेंसीज पे जाते हैं, एग्जीबिशंस में जाते हैं, बट सेरामिक एक ऐसा मीडियम है, उसका अपॉर्चुनिटी बहुत कम, या फिर उसको जैसे कि एग्जीबिशन हो गया, बहुत सारे लिमिटेड स्पेसेस मिलता है, जैसे इसका प्रोसेस भी इतना लंबा होता है। तो आप एज एन आर्टिस्ट फील्ड में किस तरीके के चैलेंजेस फेस करते हैं, और वो सारे चैलेंजेस को आप किस तरीके से कम करने की कोशिश करते हैं हर एक काम पे? जैसे आपके स्कल्पचर हो गया, आपके जैसे डिनर वेयर हो गया, मतलब टेबल वेयर हो गया, तो उस तरीके का आप कैसे सोचते हैं कि एज अ प्रैक्टिस आप इस सारे मीडियम मतलब ये सारे प्रैक्टिस को किस तरीके का आगे लेने की सोच रहे हैं? ये है कि अ, हमें स्टूडियो चलाने के लिए हमको पूरे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए आर्टवर्क पे, जी क्योंकि हमें कुछ तो हमें अपने सेरामिक का टेबल वेयर, क्रॉकरी बनाने ही पड़ते हैं, जो हमारे मार्केट में जाते हैं, जिससे हमको पैसे मिलते हैं, फिर हम उसको अपने आर्टवर्क में लगाते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि मैं जो भी पॉटरी करता हूँ उससे पैसे आते हैं, जो अपने आर्ट आर्ट में लगाता हूँ। आर्ट के लेकर बाहर जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि जितना भी हमने इन्वेस्ट कर दिया तो उसमें से कुछ आया नहीं, बिकता ही है। जो हमारे वहां से भी मुझे एक अपने मन को जी सांत्वना मिलता है कि
आर्ट हमारे बिक गया। जी तो मैं यही सोचता हूँ, बहुत करने की जरूरत है, जी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सब चीजें जी। इजी हो जाते हैं जब आप करेंगे तो। थैंक यू उपेंद्र। मैं हमारे साथ अभी बहुत लोग जुड़े हैं जो कि आपके बातें सुन रहे हैं, और बहुत सारे आर्ट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी हैं, उनमें से प्रैक्टिशनर है, आर्टिस्ट है, अलग अलग फील्ड के लोग हैं जो आपके बातें सुन रहे थे। तो मैं चाहूंगा कि अभी जिनके मतलब जो भी क्वेश्चंस है लोगों के मन में, या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपको पूछ सकते हैं इन डिटेल जो भी उनके मन में है। तो हम इस सेशन को ओपन करते हैं क्वेश्चनिंग के लिए, जो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो जिनका भी क्वेश्चंस है, कोई भी सवाल हो, वो आप अभी उपेंद्र को पूछ सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से उनके साथ बात करेंगे आगे। जी बिल्कुल, आप किसी के पास क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, जी जी। सेरामिक से रिलेटेड, सेरामिक टेक्निक से रिलेटेड। सर नमस्कार सर। नमस्ते। हेलो जूलियस। हेलो। सर मेरे पास एक क्वेश्चन था। मैं पराशर हूँ, धौली कॉलेज ऑफ आर्ट भुवनेश्वर से। जी जी। ये तो मेरा एक क्वेश्चन था कि क्योंकि आप बिहार से है, मैं भी एक्चुअली 3 साल मैं बिहार में रह चुका, पटना में रह चुका। तो उधर का जो ट्रेडिशनल स्टाइल है, मधुबनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग एक्चुअली, तो उसका सेरामिक्स में आपका कुछ इन्फ्लुएंस रहा है क्या आपके क्राफ्ट में? नहीं, हमें उसका सेरामिक में जो शेप है ना, जैसे बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये जी पूरे पहले जो हमारे ओल्डेस्ट थे, ये सभी एक में ही थे। जी जी तो ये सभी चीजें का शेप और सभी का सोच और मतलब एक ट्रेडिशन में सभी चीजें हैं। जो बिहार में मिलेगा आपको, वो बंगाल में मिलेगा, वो उड़ीसा में मिलेगा, है ना। जी लेकिन शेप से मैं इंस्पायर्ड हूँ। तो ये लेकिन अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। समय और सिचुएशन के अनुसार और लोगों को डिमांड के अनुसार थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लेकिन चीज वही है। हम्म, और मधुबनी पेंटिंग की बात हुई तो मधुबनी पेंटिंग क्या ड्राइंग जो है, वो तो ड्राइंग है जो मेरे को जी ड्राइंग पे इंस्पायर्ड नहीं हूँ वहां से। ओके और वो वहाँ मतलब वहाँ के लोकेलिटी के जो सब्जेक्ट हैं, वो ये जो गोरिया बाबा, सोखा बाबा और जो बंदी देवी, ये जो देवता है ना, ये सभी दलित का देवता है ना। जो जो मतलब ये बलि प्रथा और चीजों को लेकर बहुत एक्साइटमेंट होते हैं लोगों में। इस फेस्टिवल, त्योहार को मनाने के लिए बहुत ये होते हैं कि ऐसे करना, तो ढोल नगाड़े बजाए तसे बजते हैं, जो एक सब्जेक्ट भी बन जाते हैं एक आर्ट के लिए। तो उस सब्जेक्ट से थोड़ा सा मैं इंस्पायर्ड हूँ। जी। जी। क्योंकि एक्चुअली मेरा क्यों मैंने क्वेश्चन पूछा कि मेरा डाउट था, समझे आप सेरामिक स्टूडेंट, जब भी आप जब भी आप शुरू कर रहे होंगे तो एज अ सेरामिक स्टूडेंट आपका अलग कोई ब्रांच से आपका कुछ कैसे आप इन्फ्लुएंस अगर लेने का आपका कभी हुआ है, माइंड में आया है, समझे पेंटिंग हुआ, ड्राइंग हुआ, तो उधर से इन्फ्लुएंस लेने का कभी आप इंस्पायर हुए हैं क्या? तो वही मेरा बिल्कुल। एक्चुअली। हाँ ना सर, जी हुए हैं ना, बिल्कुल हुए हैं। क्योंकि वो जो हमारे जो सब फाइन आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स का मेन सब्जेक्ट ड्राइंग ही है, तो है जी जी ड्राइंग है। जो हमारे सेरामिक से उससे एकदम रिलेशन बन जाता है, सेरामिक और सेरामिक के ऊपर ड्राइंग। तो इसलिए जी मुझे नया नया लगता है अपने आर्टवर्क देखकर। जी। थैंक यू सर। वेलकम नहीं थे। भाई। और कोई सवाल करना चाहते हैं तो हम लोग बात कर सकते हैं उस पे।
करते हैं। यस, आप पूछ सकते हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड जी। इवनिंग। जी सर। गुड इवनिंग सर। तो मेरा एक क्वेश्चन था। अ, तो जो एनगॉग आप जो एनगॉग इनगो एनगॉग में इनगोब एनगॉग इनगोब के बारे में थोड़ा इनगोब के बारे में बताएं। ये सर एनगॉग के बारे में हाँ, थोड़ा तो आप ये इनगोब एनगॉग क्या आप होता है इसको। खुद बनाया क्या? एनगॉग आप खुद नहीं नहीं, ये बनाया? सभी सेरामिक में ये डिजाइन के लिए यूज होते हैं। ये एक प्रकार का कलर स्लिप होते हैं, है ना। जैसे रोब होते हैं ना, ये एक प्रकार के कलर स्लिप होते हैं जो ये डिजाइन के लिए ही होते हैं। आप अपने पॉट के ऊपर इसको बाई ब्रश, बाई स्टेंसिल या बाई थ्रो करके आप पॉट के ऊपर अप्लाई करेंगे इस इनगोब से। फिर उसको ग्लेज में ये ट्रांसपेरेंट ग्लेज में ही दिखते हैं। तो ऐसे ऐसे ये होता है। ये दो प्रकार की होते हैं, एक तो रेड क्ले से बनाई गई है और एक व्हाइट क्ले से बनाई गई। तो जो मैं यूज करता हूँ रेड क्ले से बनाई गई होती है। जो ये यदि इसको बोलेंगे तो ये एक प्रकार का कलर स्लिप है जो ऑक्साइड और मिनरल्स के निश्चित अनुपात के कंपोजिशन से तैयार किए जाते हैं, जिसका अलग अलग टेम्परेचर भी होते हैं। जैसे हम लोग अर्धनवेयर का टेम्परेचर हम लोग 1000 तक देते हैं ना, तो उसमें भी ये इनगोब यूज हो जाते हैं। और 1200 to 15 पे जो सेरामिक बेक करते हैं उसमें भी ये इनगोब यूज हो जाते हैं। तो वही है वो। लेकिन जो व्हाइट क्ले से बनाई गई इनगोब होते हैं ना, वो बहुत प्रकार कलरफुल होते हैं, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा सभी कलर के बनते हैं। और जो रेड क्ले से बनाई गई इनगोब होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ब्राउन होते हैं। ब्लैक के लाइट ब्लैक भी होते हैं और ब्राउन के लाइट ब्राउन भी। तो ये जो ऑक्साइड्स के होते हैं इनगोब, जैसे कि आयरन ऑक्साइड मिलाया जाता है, उसके हिसाब से अलग अलग कलर डिफाइन होते हैं। तो अगर हम लोग स्टेन डालते हैं, अलग अलग स्टेन हो गया, तो उसके लिए वाइट स्लीव बनाना पड़ता है। बिल्कुल, व्हाइट स्लिप ओके। में स्टेन डाल के हम लोग अलग अलग कलर के बना सकते अच्छा हैं। ये बहुत इजी है स्टेन डाल के बनाना। जी। लेकिन ऑक्साइड से बनाई हुई इनगोब बहुत डिफिकल्ट होते हैं। कभी हाँ, कभी तो जो चीज हम बनाते हैं उसका रिजल्ट भी सही नहीं आते। ज्यादा फायरिंग पे वो कलर इधर जी उधर हो जाता है शायद। जी जी जी। हाँ सर। और एक भी क्वेश्चन है सर। सर ये जो टेक्निक है वो और एंगॉग है, ये खुद का एक्सपेरिमेंट है या और कुछ बुक्स सिलेक्टेड है? इनगोब तो मेरा जैसे मैं खुद का ही बोलेंगे, क्योंकि मैं जो इनगोब बनाते हैं 3 तरह का। एक तो रेड क्ले, एक में होता है मेरा 80% रेड क्ले होता है और एक में 20% रेड क्ले होता है। हाँ। और वो एक आयरन ऑक्साइड से बनाते हैं, एक मैग्नीज ऑक्साइड से। और तीनों इनगोब को जब बनाते हैं ना, मैं तीनों में से कुछ कुछ परसेंटेज ले लेता हूँ। जो मैंने डार्क पोर्शन पे ये तीनों का मिक्सचर वाले लगाते हैं, और लाइट पोर्शन पे जो 20% रेड क्ले लगाए हुए होते हैं उसको हम ऊपर पार्ट पे लगाते हैं जहाँ पे हमको लाइट चाहिए होता है। तो ये इसलिए एक ही इनगोब नहीं है, ये मिक्स है मेरे काम के ऊपर। जो अभी आप काम देखें वो सभी इनगोब को मिला मिला कर बनाए, कोई एक इनगोब नहीं है। ओके सर, ओके सर। और एक भी सर क्वेश्चन है कि तो फायरिंग तो जब आप करते हैं, फायरिंग जब करते हैं तो हाई टेम्परेचर जो हाँ, ये सभी हाई 1250 डिग्री सेल्सियस पे सभी बेक किए गए हैं। अभी जितने भी आप काम देखे सभी 1250 100 सेल्सियस पे बेक किए गए। ओके सर। और ये मुझे तो गैस फायरिंग में ज्यादा अच्छे लगते हैं। वुड फायरिंग में यदि इनगोब के ऊपर से जो कुछ आ जाते हैं ना, तो हमारे ड्राइंग ढक जाते हैं। तो इसलिए मैं ड्राइंग वाले वुड फायरिंग में करना पसंद नहीं करता। ड्राइंग वाले वर्क को गैस फायरिंग ही ज्यादा सुटेबल होता है।
सर और एक भी क्वेश्चन है, तो बिस्किटिंग के बाद जी एनगॉग फिर लगा सकते हैं, दे सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखना है, जो हमारा ब्लैक इनगोब है ना, बिस्किटिंग के बाद मतलब उस रिएक्शन जैसा हो जाते हैं, वो पपड़ी बन के निकल जाते हैं। तो ब्लैक इनगोब को लगाना चाहिए जब भी तो ग्रीन वेयर में ही लगाने चाहिए, मतलब बोन ड्राई जब हमारा वर्क है उस टाइम में ही लगाना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत लोग लेट से ज्वाइन हुए हैं, अभी 2-4 लोग बहुत लेट से ज्वाइन हुए हैं, जो सब खत्म हो गया। जी उपेंद्र जी नमस्कार। नमस्ते जी सर। मेरा नाम राजेश पटनायक है, धन्यवाद जी सर। हमारे टॉक पे आने के लिए। एंड मेरा ऐसा रहेगा कि अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे आर्ट स्टूडेंट्स भी है यहाँ पर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ टिप्स दें एज कि आगे जाके सेरामिक को एज अ आर्ट प्रैक्टिस में लेने के लिए क्या करें, कौन सा टेक्निक्स फॉलो करें और क्या फॉलो करें कि हम जाके सेरामिक्स को लेके एज अ आर्टिस्ट बन सके। तो इसके लिए अगर आप स्टूडेंट्स को टिप देंगे बहुत अच्छा होगा। हमें तो लगता है आर्टिस्ट बनने की सोचिए ही मत, सिर्फ काम करने की जरूरत है। आप जब काम करेंगे ना अपने आप आर्टिस्ट बन जाएंगे। आपको किसी से समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और कोई टेक्निक आप कहीं से किसी के बताने से आप कर नहीं सकते। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक वो टेक्निक आपका नहीं रहेगा। जब आप करेंगे ना तभी आपका वो टेक्निक हो जाएगा। मैंने कहीं से किसी से समझा नहीं था, मैंने करते गया 4th ईयर में फिर मेरे लगा कि इसमें फूल पत्ती ना बना के इस पे ड्राइंग करें, तो वो लोगों को ज्यादा पसंद आने लगा। यही सभी चीजें होती है। अपने काम के प्रति ईमानदारी और ज्यादा करने की मन में लालसा होना चाहिए। उसके बाद मीडियम तो अपने आप ही हो जाता है। हम लोग एक प्रैक्टिस के थ्रू ही मीडियम डेवलप हो जाता है, जैसे अलग अलग थॉट से वो आ जाता है। बट एक चीज भी है ना कि जैसे मतलब राजेश ने जो पूछा है कि बहुत कम लोग हैं जो, जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस में सेरामिक डिपार्टमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट है तो बहुत अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि किसी के पास स्किल नहीं है या फिर वो सही टेक्निक को करने के लिए उनको गाइडेंस कम मिलता है। इसलिए मैंने बोला था कि सेरामिक बहुत इजी है और बहुत डिमांड है, करने वाले लोग नहीं है सर। जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि कॉलेजेस में टीचर्स अच्छे नहीं है कुछ, क्योंकि लोग ही नहीं है। हाँ, करने वाले ना लोग है ना इक्विपमेंट्स है। आप करेंगे क्या? आप करने वाले लोग तो तैयार करें, उसके बाद तो इक्विपमेंट्स बनेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको करना है। मैंने अभी बोला कि आप आर्टिस्ट बनने की सोचिए मत, मैं ये नहीं बोला कि आप सोचिए नहीं, मतलब आप करिए, अपने आप आर्टिस्ट बन जाएंगे। आप किसी के कहने से मत बनिए आर्टिस्ट ना जी, आप करेंगे तो खुद आर्टिस्ट बन जाएंगे। जी जी। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि आप आर्टिस्ट बनने की सोचिए मत, आप किसी के कहने से मत सोचिए, आप करिए, खुद आप आर्टिस्ट है। आप आर्टिस्ट ऑलरेडी हैं, बस ज्यादा करने की जरूरत है। बिल्कुल, थैंक यू जी। अभी फिर कुछ कोई क्वेश्चन? कोई और सवाल करना चाहेंगे तो हम लोग बात कर सकते हैं इसमें। गुड इवनिंग उपेंद्र जी। गुड इवनिंग सर। मैं सर्वेश्वर बोल रहा था। जी जी बोलिए। सर एक डाउट था, आप सेरामिक से बनाते हैं? बिल्कुल। टूट गया या फिर कुछ मतलब वेस्ट हो गया तो उसको आप कैसे रिसाइकल करते हैं? देखिए सेरामिक तो ये मतलब मीडियम ही है आपका, बहुत चैलेंजिंग मीडियम है सेरामिक।
बहुत पेशेंस की जरूरत है सेरामिक करने के लिए, है ना। तो जी। उतना आपके पेशेंस होना चाहिए कि हमारे वर्क टूट जाए तो हम रोएंगे नहीं, है ना, क्योंकि मटेरियल ही वही है, टूटेगा, है ना। तो उस हिसाब से आप डिजाइन तैयार करेंगे। जो भी हमारा डिजाइन देखे होंगे, कहीं से विंग्स नहीं निकले होते हैं, कहीं से अलग से उसमें हाथ पैर जुड़े नहीं होते हैं, वो सॉलिड एक डिजाइन होते हैं, क्योंकि हमको पैकेजिंग करके ले जाने तक भी सोचने पड़ते हैं। जी सर। तो इतना सोच के काम करना पड़ता है। यदि टूट गया तो कोई बात नहीं, दूसरा बना लेंगे। सेरामिक आर्टिस्ट का बहुत बड़ा दिल होता है। वो तो सही है, लेकिन अगर आप मतलब वेस्ट हो जाता है ना वो मटेरियल, आप क्या फेंक देते हैं या फिर उसे फिर कुछ जैसे मतलब क्रश करके कुछ रिसाइकिल? मैं नहीं, वही एक ऑप्शन है, आप ग्रॉक बना सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं, ग्रॉक बना सकते हैं। अच्छा जी सर, थैंक यू। डिजाइन पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि डिजाइन हमारा सॉलिड हो, ज्यादा इधर से कुछ डिजाइन में ऐड ना हो, बहुत बारीकियां ना हो, क्योंकि हमारा मीडियम वही है। यदि बाल जैसे डिजाइन कर देंगे तो टूटेंगे ही और टूट के खराब होंगे, इसलिए डिजाइन सॉलिड होनी चाहिए। जी सर, थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू उपेंद्र, आपने सबके साथ इतने अच्छे से बात की, आपके प्रैक्टिस के बारे में हम लोग समझे, और आपके साथ आगे भी आप जब उड़ीसा आएंगे तो उस आपके साथ काम करेंगे तो और भी सारे चीज़ें क्लियर आउट होगा, और हम आपके प्रैक्टिस को और भी करीब से देखेंगे। और मतलब आज के डिस्कशन में हम लोग आपसे जाने कि किस तरीके से एक मीडियम कंटिन्यूअसली चेंज होता रहा है। जैसे हम लोग सबसे पहला सेरामिक अगर इंडस वैली को ले या फिर राजस्थान पे जो जो चीज आर्कियोलॉजिकल साइट्स में मिले हैं, पहले तो बीड्स बनते थे, उसके बाद धीरे धीरे पॉटरी बनना चालू हुआ, फिर अलग अलग चीजों पे इस्तेमाल किया गया। एंड एक अच्छी बात भी हुई कि आपने ये सारे पुराने मीडियम को या फिर बहुत टाइम से चला है आए मीडियम को कैसे कंटेम्पररी टाइम पे सस्टेन करने की सोच रहे हैं, उसको टाइम के हिसाब से सेव कर रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस भी उसमें बहुत इन्फ्लुएंस है, तो बहुत अच्छा था। अगर आप और कुछ बोलना चाहेंगे। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेशन ज्वाइन करके। मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि थैंक यू टू बेड्स स्टूडियो एंड दिस आर्ट टॉक लाइक आर्ट डिजाइन कन्वर्सेशन। ये सेशन को ज्वाइन करके मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं आप सभी इतने लोगों से कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगा। मैं अपने चीज़ों को थोड़ा सा बता पाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक मैं यू। हमारे जो फाउंडिंग मेंबर है संदीप भाई, उनको इनवाइट करूंगा, आपको वोट ऑफ थैंक्स देंगे। आप इतने टाइम तक हमारे साथ जुड़े रहे, सबके साथ डिस्कशन किए, तो मैं संदीप भाई को इनवाइट करना चाहूंगा आपको, और सारे ऑडियंस जितने भी हमारे साथ इतने टाइम से सुन रहे थे उनको थैंक्स गिविंग देने के लिए। संदीप भाई। थैंक्स जूलियस। उपेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन किए आज, और ये सेशन हमारा पहला ही सेशन है जिसमें हम चाहते हैं कि हम आपकी तरह बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ बात करें और आर्ट और डिजाइन और उसके महत्व को समझें। और आपका जो ये पहला हमारे साथ ये टॉक रहा, हमको बहुत एक एहसास हुआ जो कि हमारा आर्ट और क्राफ्ट का जो ये दुनिया है काफी जुड़ा हुआ है हमसे, और उसका डिजाइन जो है के जो इन्फ्लुएंसेस हैं काफी जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ज्वाइन किए हैं आज जो आपके इस टॉक से काफी प्रभावित हुए हैं। सो थैंक यू सो मच कि आपने ये आपका कीमती टाइम आपने दिया, एंड आई वांट टू थैंक द एंटायर ऑडियंस। आप लोग टाइम निकाल के ज्वाइन किए उपेंद्र जी की बात सुनने के लिए। ये टॉक सीरीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हर महीने, एंड होपफुली आप लोग सब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे
ये टॉक सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच उपेंद्र जी फॉर दिस। थैंक यू सर, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा Thank you, ये सेशन ज्वाइन करके। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक Thank यू you, संदीप sir. भाई। थैंक यू, आई लव यू, Thank you. गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर Goodbye. शेयर, आपका नॉलेज शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और हमको स्टूडेंट्स हैं तो एक्स्ट्रा नॉलेज और एक्स्ट्रा कुछ सीखने के लिए बहुत इतना चांस दे रहे, तो थैंक यू सो मच जूलियस। Thank you so वेलकम, बाय, गुड बाय। गुड बाय। थैंक यू उपेंद्र जी।